uh, 32 speakers from all walk of lives who have come here on this stage, gave their good, bad, and ugly stories about the digital commerce. Some abide by the idea. Some still think that ONDC still need to take many stories forward. May I request Vibhor if he can come and tell us about his experiences. He's CEO of ONDC. He has to drive most of the suggestions which has come. Then we can proceed towards the valedictory session. Vibhor. Thank you so much. I think a very eventful day. A lot of experts, a lot of good advice for us, a lot of insights, a lot of suggestions. I think it makes our task complex and easy, both. Complex from a perspective that, how do you really sort of prioritize the sort of suggestion that came in? Simple from the perspective that at least there is a very clear roadmap laid out. And I think a couple of things that came out very clear, and I think that would be the priority for us as we move ahead. One, in terms of making it simple, right? I think that was a very broad theme that came across all the speakers today. How can we make the life simple for anyone who is onboarding onto the network? Point two, obviously, how do we ensure that there is some promise or trust that the network provides for? Right? I think a lot of speakers spoke about grievances, service levels, logistics, payouts, timely payouts. I think that's a very clear second level of, working that we should be focusing on. A lot of inputs came in terms of, credit. How can we enable credit? How can we leverage some of the data insights that come from the network? So yeah, I think overall a very enriching day. I would really want to sort of thank, CIEU for all the hard work that has gone behind this event. Ashwini ji, thank you so much for your, mentorship and sort of hustle in driving this entire initiative. Thank you so much. Thank you, Shahji from NABARD in terms of sponsoring this initiative and all the other partners, PayG, DA, sort of, for supporting this initiative. Thank you so much for this. Thank you, Shekharji, for sort of, driving this entire agenda in terms of the concept and your insights in this journey. So, and thank you for all the audience, thanks to all of you in terms of being a patient audience, being here through the day and sort of participating. Thank you very much. Unfortunately, today is a busy day in the parliament, so some of the member parliament were supposed to come, but they couldn't come because BJP issued a whip. So, but still, we are thankful for everyone. So may I now invite Dr. Ashwini Mahajan to come and give his address, then we can depart for the day. आज के इस महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के अवसर पर, के समापन के अवसर पर उपस्थित आदरणीय शाहजी जी, चेयरमैन नाबार्ड, मिस्टर हरमीत सिंह जी, CEO पेजी, respected Shekhar Swami ji, who had driven this whole idea of organizing an event so that we can take ONDC forward. जैसा सुबह में इस कॉन्क्लेव की शुरुआत में हमने एक बात आपके सामने रखी थी कि आज की स्थिति में जो डिजिटल कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, वो एक सच्चाई है, एक ज़रूरत भी है। समय बदला है। .com का युग आने से पहले आज हमारे साथ संजीव बिखचंदानी थे, वो एक पॉयनियर थे .com में, यानी एक भारतीय सामान्य परिवार से आने वाला बालक जब अपने ऑफिस में जाता था
तो वो देखता था कि लोग नौकरी बहुत ढूंढते हैं, सिचुएशन वेकेंट के बारे में वो लगातार देखते रहते हैं लोग। उनको कई अखबारें टटोलनी पड़ती हैं, कई मैगजीन्स देखनी पड़ती हैं, तब जा कर के वो सारा देख पाते हैं। तो उनके मन में आया कि क्यों ना मैं इसको एक वेबसाइट के जरिए बता सकूं, सभी प्रकार की जो सिचुएशन वेकेंट है उसको एक जगह इकट्ठा करके दिखाएंगे तो लोगों को सहूलियत हो जाएगी। शायद उस समय ये नहीं विचार आया होगा कि ये इतना बड़ा एम्पायर वो खड़ा करने में सफल हो सकेंगे, लेकिन समय बदला। न केवल नौकरी ढूंढने वाले, नौकरी देने वाले भी उस पे ऑन बोर्ड होने लगे और धीरे धीरे करके naukri.com के नाम से एक ऐसा शुरुआत हुई, वहाँ से .com रेवोल्यूशन शुरू होती है। भारतीय हर काम को अत्यंत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमने इसके बारे में कई अनुभव हमारे सामने हैं। यदि जैसा कि प्रारंभ में इस कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में श्रीमान भारत भूषण जी, अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने बताया कि एंगस मेडिसन, जो विश्व के सबसे बड़े आर्थिक हिस्टोरियन हैं, कि कैसे हमारा देश दुनिया की जीडीपी का 33 से 35% पैदा करता था। ये वही देश है और जिसके बारे में आज हम विचार कर रहे हैं कि कैसे वो विकसित राष्ट्र बनेगा। यानी हम पहली बार कोई विकसित राष्ट्र बनने का सपना नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी हम विकसित राष्ट्र थे, नंबर 1 देश थे। क्योंकि दुनिया का कोई भी देश इस समय जो विकसित है वो इस बात का दंभ नहीं भर सकता है कि वो कभी 33% जीडीपी पैदा करता था या आगे भविष्य में करने वाला है। ऐसे में हमारे युवा, हमारे उद्यमी अभी भी वही जोश, वही स्पिरिट रखते हैं। दुनिया में कई ऐसे हमारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। अमेरिका के में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्टार्टअप शुरू किया, आगे बढ़ाया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेच करके एग्जिट कर गए। अभी हमारे बहन कनाडा में रहती हैं, उनके सुपुत्र ने, हमारे भांजे ने एक कंपनी शुरू की, एक पेमेंट कंपनी थी और उसके माध्यम से इंटर नेशनल ट्रांसफ़र्स हो सकती थी। उसके लिए स्विफ्ट की ज़रूरत नहीं थी। ऐसी ही उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की और एक रिपल नाम की कंपनी, उसकी कंपनी का नाम रेल था, कोई गूगल करेगा तो पता चल जाएगा। तो रिपल नाम की एक कंपनी थी, उसने उसको $200 मिलियन में ख़रीद लिया। यानी हमारे लोग इस प्रकार से बुद्धिमानी से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम जानते हैं। लेकिन आज जो ई कॉमर्स की स्थिति बनी है उसमें कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि ई कॉमर्स का मतलब अमेज़ॉन, ई कॉमर्स का मतलब फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जब हम उपस्थित होते हैं, बात करते हैं, तो एक बात ध्यान में आती है कि भविष्य में यदि कोई पूछेगा कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तो हम सब लोग मिल कर के इस स्पिरिट से काम करें कि भविष्य में कोई पूछे कि ई कॉमर्स क्या होता है तो हम कहेंगे वो ONDC होता है। मित्रों, आज के इस कॉन्क्लेव का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि ONDC एक नेटवर्क के नाते सरकार की मदद से शुरू किया गया। हम जानते हैं कि आज जब हम
रशिया से तेल खरीद रहे हैं, कच्चा तेल खरीद रहे हैं, उसमें अमेरिका हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप रूस से तेल मत खरीदो। इससे पहले भी उन्होंने रोका था, इससे पहले भी उन्होंने कहा कि आप रूस से तेल मत खरीदो। हमने कहा क्या कर लोगे? तो उन्होंने कहा कि हम आपको स्विफ्ट से बेदखल कर देंगे, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। मैं यहाँ पर हॉल में बैठे हुए सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, उनके पास सैंक्शंस लगाने का कोई और तरीका नहीं था, केवल और केवल यही कि वो आपकी पेमेंट्स को रोक सकते हैं। आप किसी को पेमेंट दे नहीं सकते, पेमेंट किसी से ले नहीं सकते। हमने कहा कि आपकी स्विफ्ट आपको मुबारक, हम बहुत जल्दी अपने रुपए को, अपनी यूपीआई को रूस के पेमेंट सिस्टम से इंटीग्रेट कर देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चीन के सिस्टम से भी इंटीग्रेट कर देंगे। और उसके बाद अमेरिका ने स्विफ्ट की धमकी देना बंद कर दिया। अभी उन्होंने नई धमकी दी है कि अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे। तो भारत सरकार ने उनको सही जवाब दे दिया है कि हम आपकी उस धमकी से भी डरने वाले नहीं हैं। आप हमारे सामान पर टैरिफ लगाएंगे तो आप ही को नुकसान होने वाला है, लेकिन हम भी इसके बारे में कुछ कोशिश कर सकते हैं। वो सरकार को निर्णय लेना है कि उन्होंने कितने हवाई जहाज़ उनसे खरीदने हैं, कितने हवाई जहाज़ नहीं खरीदने हैं, कितना रक्षा का सामान खरीदना है, कितना नहीं खरीदना है, कितने भारत में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट सरीखी कंपनियों पर कितना टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाना है, गूगल पर कितना टैक्स लगाना है, सोशल मीडिया कंपनियों पर कितना टैक्स लगाना है, ये सरकार को निर्णय लेना है। इसके लिए हम केवल संकेत दे सकते हैं, निर्णय उनको लेना है। लेकिन ये बात सच है कि कोई भी क्षेत्र हो, भारत और भारतीय उसमें अपनी क्षमता से आगे बढ़ने में पूरी तरह से सक्षम हैं। कोई ज़माना था 70% हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स का हम इंपोर्ट किया करते थे। आज हम अपने तमाम रक्षा प्रतिरक्षा की रिक्वायरमेंट को अपने दमखम पर पूरा करते हैं। और केवल दमखम पर पूरा नहीं करते हैं, इस बार हमने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया दुनिया को कि हमसे बेहतर किसी की मिसाइल नहीं है, चाहे वो ब्रह्मोस हो या आकाश हो। हमसे बेहतर किसी का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, चाहे आप किसी भी देश के साथ उसकी तुलना कर लीजिए। हमारे से बेहतर किसी का एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो हमने चीन के और तुर्की के जितने भी उनके सबसे बढ़िया ड्रोन्स थे, उनको या तो मार गिराया या उनको स्थिर कर दिया। और वही अमेरिका और वेस्ट जो पिछले कई सालों से लगातार रूस और यूक्रेन को युद्ध को हवा दे रहा है, उनको हथियार सप्लाई कर रहा है, उनको तरह तरह की मदद कर रहा है, वहाँ उसको विश्व शांति को कोई खतरा दिखाई नहीं देता। महज 4 दिन की लड़ाई, 4 दिन का हमारा ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिका और यूरोप को ये लगने लगा कि विश्व शांति को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। वो विश्व शांति को खतरा नहीं था, उनके बाजार को खतरा था। उनके बाजार को ये खतरा था कि कहीं अगर 2-4 दिन ये युद्ध और चल गया, दुनिया ने और देख लिया कि आकाश मिसाइल कैसे चलती है, ब्रह्मोस मिसाइल कैसे चलती है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम कैसे चलता है, तो वो अमेरिका और यूरोप से हथियार खरीदना बंद कर देंगे और भारत से ही खरीदना शुरू कर देंगे। अभी भी उनको काफ़ी नुकसान हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने लॉस मिनिमाइजेशन करना चाहिए और किसी तरीके से यहाँ पर युद्ध विराम कराना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं मैंने युद्ध विराम करा दिया, ये किया, तो ये सब इसी कारण से हुआ। आज केवल उसमें ही नहीं, आज हम स्पेस में दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। जो चीज़ हासिल की, $166 बिलियन लगा करके अमेरिका ने चांद पर पहुंचकर
हमने मात्र महज 615 करोड़ रुपए, जो 20 किलोमीटर सड़क बनाने का खर्च आता है, 615 करोड़ रुपए में हमने चंद्रमा के उस हिस्से पर पहुंच के दुनिया में इतिहास रच दिया। महज 100 से 150 करोड़ रुपया खर्च करके हमारा PSLV एक बार में 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने में सफल होता है। ये भी दुनिया में अपना एक इतिहास रचने वाली बात है। केवल इतना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो, टेलीकॉम के क्षेत्र में हो। एक बात कुछ साल पहले ये बात कही जा रही थी, अगर देश में 5G रोल आउट करना है तो उसके लिए हुआवे के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हुआवे से ही 5G हम रोल आउट कर सकते हैं। जब मिनिस्टर से पूछा गया, आजकल तो वो नहीं है मिनिस्टर, तो उनसे पूछा गया कि ये 5G कहाँ से आएगा, कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या इसमें हुआवे भी करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सुरक्षा का कंसर्न था। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भारत के गृह मंत्री से क्या बात कर रहे होंगे, वो शी साहब अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सुन रहे होंगे, ऐसी स्थिति बन रही थी। लेकिन हमने उसको बदला, उस स्थिति को बदला, उस सोच को बदला, और आज भारत का 5G आई भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक इतिहास रच रहा है। पूरी दुनिया के लोग अब वो 5G आई मांग रहे हैं, 5G इंडियन। मित्रों, यही हमारे जो अनुभव हैं, UPI का अनुभव, कोई सोच ही नहीं सकता है। हमें पूरे दुनिया भर में घूमते हैं। एक बार अनिलेश जी के साथ ही हम कहीं स्विट्ज़रलैंड में एक कॉफ़ी शॉप पर रुके। उनसे हमने पूछा कि क्या आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। वो क्रेडिट कार्ड भी यूज़ नहीं करते, UPI तो दूर की बात है। लेकिन वहाँ कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं वो लोग। फ्रांस आज हमारे UPI की तरफ देख रहा है। अभी हमारी काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग को श्रीलंका के राष्ट्रपति के विशेष दूत ने आकर के ये कहा है कि आप जो भारत का डिजिटलाइजेशन एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको कैसे वहाँ रेप्लिकेट करा सकते हैं, इसके बारे में आप हमें सलाह दीजिए। और CIAU दिसंबर में वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित कर उनको UPI, उनको ऑनलाइन पेमेंट, उनको UID ये समझाने के लिए जाने वाले हैं। मित्रों, ये सारे जो अनुभव हमारे हैं, चाहे वो डिफेंस का है, UPI का है, स्पेस का है, दूसरे क्षेत्रों के हैं, आज अब इस बात की ज़रूरत है कि जिसको हम कहते हैं जीरो टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ई-कॉमर्स इज़ ओनली अबाउट ऐप, एक एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन के लिए दिल बहुत, मन बहुत इस पे गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है कि मैं जिस ड्राइवर को ऊबर के माध्यम से बुलाता हूँ उसको मैं 300 रुपये देता हूँ, तो 100 रुपया वो कंपनी उससे ले लेती है, उसके पास मात्र 200 रुपये बचते हैं। उसमें उसको पेट्रोल भी और गैस भी डलवाना है, उसमें उसकी अपनी मेहनत भी है, उसकी अपना कार का EMI भी है, और उसमें बचेगा कितना, इसके बारे में हमें एक बार विचार करना पड़ता है। तो ऐसे में केवल यही नहीं है, जितने भी वेंडर्स इन ई-कॉमर्स कंपनियों के ऊपर ऑन बोर्ड हैं, उनको कितने प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। केवल यही नहीं है कि उनके पैसे कट जाते हैं, इसके अलावा उनके ऊपर तरह तरह की शर्तें लगाई जाती हैं, रिटर्न्स के बारे में, वेयर हाउसिंग के बारे में, तमाम प्रकार की शर्तें लगती हैं।
जिसके कारण जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, छोटे वेंडर्स हैं, उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ONDC उनका एक उत्तर है। नॉन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ ई-कॉमर्स दैट ओनली कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द वोज ऑफ द स्मॉल पीपल। ये जो ई-कॉमर्स है, इट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग बिग कॉरपोरेट्स। ये नहीं है। हम जिस प्रकार से अगर ई-कॉमर्स में हम यानी हमें करना चाहिए, हम एज ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रकार से हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट का विरोध करते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई भारतीय कंपनी भी इसी प्रकार का शोषण करती है, उसका भी उतना ही विरोध होना चाहिए। लेकिन केवल विरोध से काम नहीं चलता है, हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ रचनात्मक काम करना पड़ेगा। उस रचनात्मक काम करने में मुझे इस बात की खुशी है कि जब आज इस कार्यक्रम में आदरणीय सुरेश प्रभु जी उपस्थित हुए थे, 2018 में जब फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट की डील हुई, तो हम मन में बहुत दुख हुआ कि हमारे देश का इतना बड़ा बाजार किसी दूसरे देश में बैठ कर के दो पार्टियों के बीच में बिक जाता है और हमारी सरकार उसमें कुछ कर नहीं पाती। तो हमने सरकार से निवेदन किया कि आपको कुछ इसमें व्यवस्था में बदलाव करने की ज़रूरत है। ऐसे में सरकार के पास इतनी कैपेसिटी होती है, किसी एक व्यक्ति के पास 500,000 करोड़ रुपए बर्न करने की कैपेसिटी नहीं होगी, लेकिन सरकार जरूर देश के लोगों के लिए निवेश कर सकती है। जब हम गरीब लोगों के लिए घर बना सकते हैं, जब हम गरीब लोगों के लिए शौचालय बना सकते हैं, जब हम गरीब लोगों के लिए उनके घरों तक बिजली और पानी पहुंचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उनके शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसे में छोटे व्यापारियों की रक्षा के लिए, उनके काम के लिए हम कोई सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर सकते। तो उसके लिए ONDC की व्यवस्था का निर्माण हुआ और वो ONDC की जो व्यवस्था है उसको पुष्ट करने का प्रयास आज का यह जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से किया गया है। हमने प्रयास किया कि इस क्षेत्र में जो जो संगठन, जो जो व्यक्ति, जो जो संस्थाएं हमें मदद कर सकती हैं, उन सबको इकट्ठा लाया जाए। हमने नाबार्ड से निवेदन किया, आदरणीय शाह जी ने पूरा समर्थन दिया। हमने सिडबी से निवेदन किया, उन्होंने हमें समर्थन दिया। इसी प्रकार से पेजी और तमाम प्रकार के दूसरे कई ऐसे संस्थाएं, संगठन हैं जिनकी मदद से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा सका। इस कार्यक्रम के आयोजन का एक ही उद्देश्य है कि कैसे इस ONDC नेटवर्क जो एक तैयार हो गया है, हमारे हरमीत जी ये कहते हैं कि पटरियां बिछ गई हैं, यानी जो भी नेटवर्क है वो बिछ चुका है। अब उस पर रेल चलाने की ज़रूरत है और उस रेल चलाने के लिए हमें उन सब सहयोगियों का मदद कर लेनी पड़ेगी और उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करें, ऐसी, और सरकार को भी उसमें मदद करने की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह मैं आदरणीय शेखर जी को जब हम इस सारे विषय को बारे में बात कर रहे थे तो यही निवेदन किया, इसके लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है। ये सामान्य नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम सब लोग इजी गोइंग होते हैं, एज द थिंग्स गो ऑन, ठीक है चलता है, मुझे ज़रूरत है मैं अमेज़ॉन पर जा कर के ख़रीद लेता हूँ, वो नहीं। इसके लिए एक आंदोलन की ज़रूरत होगी। इसमें लोकल बाज़ारों, इसीलिए इसका नाम ही लोकल कॉमर्स लोकल ट्रस्ट रखा। हमें स्थानीय दुकानदारों को, वहाँ की एसोसिएशंस को, उनके सभी संगठनों को अपने साथ लाना होगा। इसीलिए हमने निवेदन किया जो ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष सिंगी जी से कि आप आएँ और इसको कैसे ऑन बोर्ड कर सकते हैं। उसी प्रकार से बहन क्या नाम था उनका, जो एडिशनल सेक्रेटरी थी, मनिंदर कौर जी ने बहुत ही पैशनेट तरीके से इस विषय को रखा कि कैसे
हम एग्रीकल्चरल एफपीओज जो हैं उनको हम ऑन बोर्ड करके कैसे किसानों का भला कर सकते हैं। इट इज़ नॉट, एफपीओज जो हैं वो एक बहुत बड़ा प्रयास है सरकार का। अगर उस प्रयास को हम एक गति दे सकते हैं, उसको मार्केट दे सकते हैं, तो उसमें ओएनडीसी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे छोटे दुकानदार, जैसे बड़ी बात आती है कि ये लास्ट मैन डिलीवरी, ये ठीक है, लास्ट माइल डिलीवरी में दिक्कतें हैं, लेकिन जब हम लोकल बाज़ारों को ऑन बोर्ड करते हैं तो उसमें वो दिक्कत भी ख़त्म हो जाती है। ऐसे में यहाँ पर हमारे गणेश राम जी बैठे हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रमुख हैं, तो ऐसे में ऐसे हम सब लोग, चाहे वो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो लोकल एसोसिएशंस हैं, ऐसे सब लोग मिल कर के हम अपने इस काम को गति दे सकें, इसके लिए ओएनडीसी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। ओएनडीसी का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बहुत पैशनेट लोग हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई कोई सामान्य लोगों से नहीं है। हमारा जो मकसद है वो कोई सामान्य नहीं है, असामान्य लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं वो सामान्य ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं। उन्होंने लाखों करोड़ रुपया दुनिया भर में फूंका है, जिसको हम कैश बर्निंग बोलते हैं, उसके आधार पर बाज़ारों पर कब्जा किया है। उस बाज़ार के कब्जे को खाली कराने का नाम है ओएनडीसी। लोकल बाज़ारों को, उनको हमें सुदृढ़ करना होगा, उनको एम्पावर करना होगा, और उसके लिए लेट अस जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर। और इसको हम सामान्य मत समझें, इसको हमें एक आंदोलन के रूप में लेकर के जाना होगा। हर मोहल्ले में जाकर, हर एसोसिएशन के साथ बात करके, हर फेडरेशन के साथ बात करके, ऐसे पार्लियामेंट में बहुत काम होने के कारण और पार्लियामेंट्री व्हिप जारी होने के कारण व्यापारी नेता एक बहुत बड़े हैं, कैट के, और संसद में भी सदस्य हैं, उनको भी हमने इसके बारे में आगे बताया है और वो भी इसके बारे में प्रयासरत हैं। ऐसे बहुत से फेडरेशंस, बहुत सी एसोसिएशंस जो व्यापारियों के मामले को लेकर के बहुत जिसको हम कहें कि उद्वेलित हैं, लेकिन कुछ सूझता नहीं है, लेकिन एक बेहतर प्रकार के सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग ओएनडीसी के माध्यम से कर सकेंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। और मैं जिस संगठन से आता हूं और CIU सब मिल कर के इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। और ये भी एक तय हुआ है कि हर वर्ष इस प्रकार का एक डिजिटल कॉमर्स का कॉन्क्लेव किया जाएगा, और अगले वर्ष भी इसी प्रकार से, इसी माह में या उसके आसपास इस प्रकार का डिजिटल कॉमर्स का किया जाएगा। हमें जो विभिन्न वक्ताओं ने इसके लिए लक्ष्य रखा है कि अगले साल तक इसको दुगना, मुझे लगता है दुगना से काम चलने वाला नहीं है, अगले साल इससे 10 गुना आगे हमारे ONDC पर या इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर हम अपनी ऑनबोर्डिंग बढ़ाएंगे। इससे जो ट्रांजैक्शंस की संख्या है वो 10 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा है कि UPI में कोई जो ग्रोथ है वो मैथमेटिकल ग्रोथ नहीं हुई है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, और उसी प्रकार की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की अपेक्षा हमारे डिजिटल कॉमर्स में भी है, लोकल बाज़ारों के माध्यम से। उसी से हम न केवल जो उपभोक्ताओं का शोषण है, ये न केवल हम जो वेंडर्स का शोषण है उसी को रोक सकेंगे, इस देश को और बेहतर राष्ट्र बनाने में और लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने में हम काम कर सकेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना यहाँ वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
So, ladies and gentlemen, with this, we conclude today's session. I want to thank NABARD, diamond sponsor, silver sponsor is SIDBI and Peji, along with the Shamlav Advisors, our associate partner, strategic partner, ONDC. So, thank you very much, ladies and gentlemen. The tea is there if you want to have before you head back. Thank you very much. Thank you.